ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یار میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جا رہی۔ اگر بابا کو اس بارے میں پتہ لگ گیا تو وہ میری چمڑی ادھیڑ دیں گے۔ زرتاشا نے اپنی کزنوں کو صاف الفاظ میں انکار کر دیا کہ وہ ان کے ساتھ کنسرٹ پر نہیں جا رہی۔ ارے ایسے کیسے نہیں جاؤ گی؟ میں نے پورے 5 ٹکٹ خریدے ہیں اور تمہیں پتا ہے کہ آخری ٹکٹ خریدتے مجھے کتنی مشکل پیش آئی تھی۔ اب کیا میں یوں ہی اسے ضائع کر دوں؟ شہریار نے تیزی سے اس کی بات کاٹی اور اپنی مجبوری بتائی، مگر وہ کہنے ہی لگی تھی کہ وہ پہلے ہی بول پڑا، اگر مگر کچھ بھی نہیں۔ اگر تمہیں نہیں جانا تھا تو تمہیں پہلے ہمیں بتا دینا چاہیے تھا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے، تمہارے پاس صرف اور صرف 5 منٹ کا وقت ہے۔ باہر آؤ، ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اس کے 4 کزنز تھے، 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے۔ فاریہ اور حمیدہ تو بہت پرجوش تھیں کیونکہ انہیں اس طرح کی سرگرمیاں بہت پسند تھیں، جبکہ شہریار اور سرمد بھی کافی خوش نظر آ رہے تھے۔ جہاں تک زرتاشا کا سوال تھا تو پہلے بھی وہ بہت خوش تھی، مگر جب اس نے اپنی دادی جان کے منہ سے یہ باتیں سنی کہ اس کا باپ اس طرح کی حرکتیں سخت ناپسند کرتا ہے تو وہ خوفزدہ ہو گئی۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑی تیار ہو رہی تھی جب اچانک ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی چیز کمرے کے اندر آ کر گری ہو۔ وہ چونک گئی اور پلٹ کر دیکھا تو ایک کاغذ پتھر کے ساتھ لپٹا ہوا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ اس کے ساتھ پہلی بار نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی کوئی اس طرح کی شرارت کر چکا تھا۔ جب سے وہ اپنے تایا جان کے گھر رہنے کے لیے آئی تھی، تب سے ہر 2 دن بعد چھوڑ کر کوئی اس کے ساتھ ایسا ہی مذاق کرتا تھا۔ وہ بہت تنگ آ چکی تھی۔ اس نے سرمد کو بھی اس بارے میں بتایا، مگر وہ لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، مجھے تو اس بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں، اور نہ ہی ہمارے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جسے تم سے کسی قسم کی خار ہو۔ تمہیں اس طرح کے جملوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس اس کو زیادہ سیریس نہ لو۔ تبھی وہ خاموش ہو گئی تھی، لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ بہت جلد اپنی خاموشی توڑنی پڑے گی۔ سب سے پہلے تو اس نے نیچے جا کر جھانکا۔ وہاں پر دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں تھا، مگر پھر اچانک ہی اس کی نظر گھر کی دیوار کی طرف اٹھی۔ کوئی شخص وہ پھلانگ کر باہر جا رہا تھا۔ اس نے چلانا شروع کر دیا۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر پورا خاندان اٹھ گیا تھا۔ سارے اس کے کمرے میں جمع ہو گئے تھے۔ سب کے چہروں پر پریشانی تھی، سوائے اس کے کزنوں کے، جو بیزاریت سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے زرتاشا کو سمجھایا بھی تھا کہ ہم نے بہت خاموشی سے یہ کام کرنا ہے اور گھر سے باہر نکلنا ہے۔ کسی کو بھی اس کی کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، خاص کر کے بڑے خان کو تو پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ مگر ہمیشہ کی طرح اس نے اس بار بھی بے وقوفی کر دی، اور اب اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ دادی جان تیزی سے آگے بڑھی اور اپنی پوتی کو گلے سے لگاتے کہنے لگی، کیا ہوا ہے میری جان، کیوں چلا رہی ہو؟ وہ دادی جان کوئی گھر کے اندر داخل ہوا، پھر یہ پتھر میرے کمرے میں پھینکا اور باہر نکل گیا۔ میں نے اسے دیوار پھلانگتے ہوئے دیکھا تھا۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں وہ اپنی کہانی سنا رہی تھی۔ اس کی سانس بہت بری طرح پھولی ہوئی تھی۔ اس کا وجود بھی خوف سے کانپ رہا تھا، کیونکہ آج اس کا شک یقین میں تبدیل ہو چکا تھا کہ واقعی کوئی شخص اس گھر میں داخل ہوتا ہے جو ہر 2 دن کے بعد اسے دھمکیاں دیتا ہے۔ فیروز خان تیزی سے آگے بڑھا اور اس کو دیکھ کر خون خوار لہجے میں کہنے لگا، پہلے تو مجھے یہ بتاؤ، تم لوگ اتنا تیار کس خوشی میں ہوئے ہو؟ کہاں پر جانے کا ارادہ تھا؟ اس کی آنکھیں کچی نیند سے اٹھائے جانے کی وجہ سے لال تھیں اور ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ اس کی حالت ایسی تھی، لگتا تھا کہ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں سامنے والے کو نگل جائے گا۔ ہم کہیں بھی نہیں جا رہے تھے۔ وہ ابھی جھوٹ بولنے ہی لگی تھی کہ فیروز نے انگلی اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔
खबरदार जो तुमने मुझसे किसी भी किस्म का झूठ बोला। तुम्हारे चेहरे को देखकर ही मुझे अंदाजा हो जाता है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। अब मुझे साफ अल्फाज में बताओ, और एक एक बात सच होनी चाहिए। बाद में अगर मुझे सच्चाई के बारे में पता चला तो मैं तुम सब लोगों की खाल उधेड़ दूंगा। सरमद और शहरयार फौरन वहां से रफू चक्कर हो गए थे। थोड़ी ही देर के बाद फारिया और उसकी बहन भी बाहर निकल गई। अब पीछे फिरोज खान, ताया जान, दादी जान और जरताशा मौजूद थे। वो बेचारी हर बार की तरह इस बार भी फंस गई थी। मैं आपको बताती हूं, आप मेरी बात आराम से सुनिएगा। उसने थूक निगला। अल्फाज चाहकर भी उसके मुंह से नहीं निकल रहे थे। यूं लग रहा था जैसे वो बातें करना ही भूल गई हो। दादी जान ने जब अपनी पोती की ये हालत देखी तो उनके दिल में रहम आ गया और वो अपने पोते को डांटते हुए कहने लगी, क्या हो गया तुम्हें? क्यों इस तरह से इसको परेशान कर रहे हो? ये पहले ही डरी हुई है। दादी जान, मैं परेशान नहीं कर रहा, बल्कि इससे सवाल कर रहा हूं। आप खुद सोचिए, अगर रात के इस पहर ये लोग बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो ये किस कदर घटिया हरकत है। क्या हमारे खानदान के ये रिवाज नहीं है कि औरतें रात 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती? बेटा, कौन सी ये अकेली थी? साथ शहरयार और सरमद भी मौजूद थे। बस कर दें, उनका नाम ना लें तो अच्छा है। आप क्या समझती हैं कि वो मर्द कहने के हकदार हैं? जैसी उनकी हरकतें हैं, मेरा बस चले तो उन्हें आज और इसी वक्त इस घर से बेदखल कर दूं। लेकिन सिर्फ चच्चा जान की वजह से रुका हुआ हूं। अगर वो उनकी औलाद ना होती तो आप देखते कि मैं उन लोगों का क्या हशर करता। उन लोगों ने हर जगह बदनाम करके रख दिया है। खुदा की कसम, जब भी कोई मुझसे शहरयार और सरमद के बारे में पूछता है तो मेरा दिल करता है जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। उनकी ऐसी ऐसी घटिया हरकतें हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। इससे पहले कि उसका मीटर स्टार्ट हो जाता, रशीदा बेगम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हौसला देते हुए कहा, ठीक है, बस कर दो, क्यों गुस्सा कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। आप जाएं दादी जान, मैंने इससे बहुत जरूरी बात करनी है। जब तक मैं अपनी बात मुकम्मल नहीं कर लेता तब तक मैं यहां से बाहर नहीं निकलूंगा। दादी जान और बाबा जान को तो उसने बाहर भेज दिया था। अब वो और जरताशा एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। उसने इस बार ये सवाल नहीं किया, बल्कि वो पत्थर उठाया और कागज खोलकर उस पर लिखी हुई तहरीर पढ़ने लगा। हम बहुत जल्द मिलेंगे, तुम्हारा बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अब जब तक तुम मेरे पास नहीं आ जाती तब तक मेरा दिल सुकून से नहीं बैठेगा। ये तहरीर पढ़कर उसके माथे पर बल पड़ गए थे। उसने वो पत्थर जोर से फेंका जो कमरे में मौजूद वाहिद शीशे पर लगा और वो टूट गया। ये क्या बदतमीजी है? और ये इंसान कौन है? अल्लाह की कसम, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। पिछले कई दिनों से मुझे इसी तरह से कागज मौसूल हो रहे हैं। कभी लिखा होता है कि हम बहुत जल्द मिलेंगे और कभी लिखा होता है बाहर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैंने शहरयार को इस बारे में बताया। इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करती, वो गुस्से से चीख पड़ा, शहरयार कौन होता है? उसका तुम्हारे साथ कौन सा ऐसा ताल्लुक है जो हर बात तुम उसे जाकर बताती हो? मैं यहां पर किस लिए मौजूद हूं? जब तुम सब लोगों को मैंने एक बात साफ अल्फाज में समझा दी है कि इस घर के सारे मामलात मैं हल करता हूं, और अगर तुम लोगों को छोटी से छोटी भी परेशानी हो तो मेरे पास आया करो, तो तुम क्यों उन बेगैरत इंसान के पास जाती हो? क्या तुम अपने बाबा की तरबियत को भूल गई हो, या तुमने वाकई ये सोच लिया है कि बड़े शहर में आ जाने के बाद तुम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारोगी? मत भूलो कि तुम एक गांव से आई हुई लड़की हो और तुम्हारे तौर तरीके शहर की लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मुझे चालाकियां करने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं हैं, और जो चालाकियां तुमने सीखनी हैं उसका बहुत बुरा अंजाम होगा। मैं कोई भी चालाकी नहीं कर रही, बल्कि सच कह रही हूं। आप प्लीज मेरी बात का यकीन करें। मैं बहुत परेशान हूं।
मुझे कई रातों से नींद नहीं आ रही। उसकी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। ये देखकर वो चंद लम्हों के लिए पुरसकून हो गया और अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं उस बारे में पता लगवाता हूं। तो मुझे उस शख्स के बारे में बताओ जिसे तुमने दीवार फलांगते देखा है। उसका हुलिया कैसा था? उसने काले रंग की पैंट शर्ट पहन रखी थी और चेहरे पर मास्क मौजूद था। अंधेरा होने की वजह से मैं साफ तौर पर नहीं देख पाई। उसने जो भी निशानियां बताई थी उनको देखते हुए एक अजनबी इंसान को ढूंढना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। फिरोज ने गहरी सांस ली और करीब ही बेड पर बैठ गया, यूं जैसे उसका अपना कमरा हो। अब मुझे बताओ कि तुम लोग कहां पर जा रहे थे? वैसे तो मुझे शाम के वक्त ही शक हो गया था जब तुम लोग एक दूसरे के साथ सरगोशियां कर रहे थे। उसका ये सवाल सुनकर जरताशा को ठंड में भी पसीने आने लगे। वो जानती थी कि अगर उसने वो जवाब दिया जो उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ तो वो यहीं पर तूफान खड़ा कर देगा। इससे पहले कि वो कोई झूठ बोलती, फिरोज की नजर उस टिकट पर पड़ गई जो उसने कॉन्सर्ट पर जाने के लिए खरीदा था। इससे पहले कि वो उसे हाथ लगाता, जरताशा ने जल्दी से वो पकड़ लिया और नफी में सर हिलाने लगी। उसकी ये हरकत देखकर फिरोज के माथे पर बल पड़ गए। अभी और इसी वक्त इसे यहां पर रखो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं, प्लीज आप छोड़ दें, मैं आपको बताती हूं कि हम कहां जा रहे थे। जरताशा ने कांपते हुए लहजे में कहा, मैं तुम्हें कह रहा हूं अभी और इसी वक्त इसे यहां पर रखो, वरना तुम्हारे बाप को शिकायत लगा दूंगा कि तुम यहां पर गलत हरकतें कर रही हो। और जिस तालीम को हासिल करने का शौक तुम्हें यहां पर लेकर आई हो, वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे दिल में ही दफन हो जाएगा। फिरोज ने अब की बार उसकी दुखती रग पर वार किया था। वो जानता था कि वो लड़की अपनी तालीम पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं कर सकती। उसने किसी चोर की तरह टिकट फिरोज के हाथ पर रख दिया। जब उसने वहां पर लिखी हुई तहरीर पढ़ी तो उसका खून गुस्से से खौलने लगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम यहां पर जाओगी, और वो भी मेरी इजाजत के बगैर? तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई? या मेरे खुदा मुझे सब्र दे। मैं तुम्हें एक समझदार लड़की समझता था, मगर तुम तो दिन ब दिन बेवकूफियां करती जा रही हो। तुम्हारी नादानियों में इजाफा होता चला जा रहा है। मैंने तुम्हें पहले दिन समझा दिया था कि मुझे इस तरह की औरतें नहीं पसंद। तुम पर मेरा दिल इसी वजह से आया था क्योंकि तुम मुझे सब लड़कियों से मुनफरिद लगी थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे अंदाजा हो रहा है कि तुम भी उन जैसी बनती जा रही हो। जरताशा की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिरोज ना सिर्फ उसका कजन था बल्कि उसके साथ साथ उसका मंगेतर भी था, और यही बात उसे सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाती थी क्योंकि उसने अपने लिए जिस तरह का इंसान सोचा हुआ था, फिरोज बिल्कुल वैसा नहीं था। वो हद से ज्यादा गुस्सीला था। छोटी छोटी बात पर उसका बीपी हाई हो जाता था और वो ये बात भी नजरअंदाज कर देता था कि सामने कौन खड़ा है। बाज़ औक़ात तो अपने बाप से भी हद से ज्यादा बदतमीजी कर जाता। मैं नहीं जाना चाहती थी, वो लोग मुझे जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहे थे। मैंने उन्हें मना भी किया था। तुम क्या छोटी बच्ची हो? तुम्हें मैंने पहले दिन समझाया था कि अगर कोई तुम्हें तंग करे तो तुम डायरेक्ट मेरे पास आओ, मैं उस इंसान को देख लूंगा। फिर इस तरह की ड्रामेबाजियां क्यों लगाती हो? देखो, मेरी एक बात गौर से सुन लो। अगर मुझे शहर की लड़की चाहिए होती तो बहुत सी लड़कियां मौजूद हैं। तुम मुझे उन सबसे मुनफरिद लगी थी। तुम क्यों अपने आप को उन जैसा बनाने की कोशिश कर रही हो? तुम उन जैसी हरगिज भी नहीं हो और ना कभी बन सकती हो। क्यों अपने आप पर जुल्म कर रही हो और क्यों मेरा दिल भी खराब कर रही हो? मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं। इसके बाद अगर तुमने किसी भी तरह की गलत हरकत की या कोई नई बेवकूफ़ी की तो मैं तुम्हें वापस गांव भेज दूंगा और फिर उसी वक्त तुम शहर आ पाओगी।
जब तुम्हारा मुझसे निकाह होगा। वो उसके सामने कॉन्सर्ट का कागज फाड़कर तेजी से कमरे से बाहर निकल गया, जबकि वो वहीं बेड पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसके दिल में शदीद दर्द हो रहा था और आंखें थीं कि खुश्क होने का नाम नहीं ले रही थीं। या मेरे अल्लाह, इस इंसान को मेरी जिंदगी से निकाल दें। उसने शिद्दत से रोते हुए ये दुआ की थी, क्योंकि अब ये इंसान नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था। उन दोनों का निकाह नहीं हुआ था, मगर उसके बावजूद वो यूं हक जताता जैसे वो इसका शौहर हो। इतनी पाबंदियां तो कभी उसके भाइयों ने उस पर आयद नहीं की थी, बल्कि वो उसे हमेशा अपनी मर्जी करने की तलकीन करते थे। हाँ, जहां तक उसके बाबा जान का सवाल था तो वो थोड़े सख्त मिजाज थे और बेटियों के मामले में जल्द गुस्से में भी आ जाते थे। वो जानते थे कि बेटियों का मामला नाजुक होता है, इसलिए किसी भी किस्म की नादानी को बर्दाश्त नहीं करते थे। जब वो अपने बाप को देखती थी तो वो दुआ करती थी कि या अल्लाह, मुझे कभी भी अपने बाप जैसा शौहर मत देना, क्योंकि उसकी माँ की जिंदगी अजीरन थी। ना तो उसकी माँ अपने खानदान में किसी से मिलने के लिए जा सकती थी और ना ही गांव में उनका आना जाना था। अगर उन्हें कहीं भी जाना होता तो अपने शौहर के साथ ही जाती थी। वजह यह थी कि उनके शौहर उन पर यकीन नहीं करते थे। अपनी सारी जिंदगी उन्होंने अय्याशी में गुजारी थी, हर तरह की औरतों के साथ ताल्लुकात रखे थे, यहां तक कि उनकी तो 2-3 नाजायज औलादें थीं। इसीलिए वो खौफजदा थे और अपनी बीवी के मामले में हद से ज्यादा सख्ती करते थे। उन्हें डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो मकाफाती अमल शुरू हो जाए, उनकी बीवी भी इसी तरह की सरगर्मियों में मुलविस हो जाए जिस तरह की सरगर्मियों वो कर चुके थे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि जब ये सब शुरू होता है तो घर की 4 दीवारी के अंदर भी औरत हर हद क्रॉस कर जाती है। कोई भी उसे रोक नहीं सकता और ना ही किसी को इस बारे में इल्म हो सकता है सिवाय खुदा की जात के। खैर, 10वीं तक तो उसने गांव में रहकर तालीम हासिल की थी। उसे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। उसके बड़े तीनों भाई बहुत तालीम याफ्ता थे। सबसे बड़ा भाई वकील था, उससे छोटा भाई सियासत में था और तीसरा भाई एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट था। अपनी बहन से वो बहुत मोहब्बत करते थे। उसकी हर ख्वाहिश मुंह से निकलने से पहले ही पूरी हो जाती थी। इसलिए जब इसने आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की तो सबसे पहले अपने बड़े भाई को इस बारे में बताया। वो जानती थी कि उसके भाई उसकी कोई बात नहीं टालेंगे। वो रात उसे अच्छी तरह याद थी। बारिश का मौसम था और वो अपने कमरे में बैठी नोट्स बना रही थी, लेकिन उसका दिल बहुत शिद्दत से घबरा रहा था। एक चीज थी जो उसे बार बार परेशान कर रही थी कि अगर मैं तालीम हासिल ना कर पाई और बहुत पीछे रह गई तो फिर मेरी जिंदगी का मकसद ही खत्म हो जाएगा। उसकी जितनी भी अमीर दोस्तें थीं, सबने शहर के कॉलेज में दाखिला ले लिया था और वो हॉस्टल में रह रही थी। मगर वो थी कि 3 महीने गुजर चुके थे। अभी तक वो डिसाइड ही नहीं कर पाई थी कि उसने क्या करना है, और ना ही वो इतनी हिम्मत कर पा रही थी कि अपने घर वालों से इस बारे में बात करे। एक बार सरसरी अंदाज में उसने अपनी अम्मी के सामने जब पढ़ने की बात की तो वो अपने सीने पर हाथ रखकर वावेला मचाते हुए कहने लगी, अरे तुम पागल तो नहीं हो गई? ये कैसी बातें कर रही हो? हमारे खानदान की औरतें हवेली से बाहर कदम नहीं निकालती। बस तुमने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। हमने कौन सा तुमसे नौकरी करवानी है? तुम्हारा तो वैसे भी रिश्ता हो गया है, 2 साल के बाद तुम्हारी शादी कर देंगे। मां की बात सुनकर वो तड़प उठी और कहने लगी, आप क्या कह रही हैं? अभी मैं सिर्फ 15 साल की हूं, तब तो मैं 18 की भी नहीं हो पाऊंगी और आप मेरी शादी के बारे में सोच रही हैं। मैंने अभी घर नहीं बसाना, मैं फिलहाल उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूं, मुझे पढ़ना है। बदबख्त, क्या तू अपने बाप को जानती नहीं? वो मुझे घर से बाहर निकालने की इजाजत नहीं देता, तुझे कहां शहर जाने की इजाजत देगा? बस तू ये ख्याल अपने दिल से निकाल दे, यही तेरे लिए बेहतर है। बाद में मुझे ना कहना कि तेरे बाप और भाइयों ने तुझे डांटा है
या तुझ पर हाथ उठाया है। गुस्से में वो अपनी बात मुकम्मल करके वहां से चली गई थी, जबकि वो कमरे में अकेली थी और मुसलसल इसी बारे में सोच रही थी। उसने हिम्मत की और भाई के कमरे की तरफ चल दी, लेकिन अंदर से उसे भाभी की चीखों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसके दिल को कुछ हुआ। ये लड़की उसके घर में पिछले 1 साल से मौजूद थी, मगर उसका भाई उसकी भाभी पर बहुत जुल्म करता था। छोटी छोटी बात पर अपनी बीवी पर हाथ उठा लेता, उसे सजाएं देता, और सबसे बढ़कर ये कि उसकी वजह से उनका बच्चा भी जाया हो गया था। उसे अपने भाई से इस हवाले से बहुत शिकायतें थीं। वो अपने भाई को समझाने की कोशिश करती तो वो हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा करता और इसकी आंखों में देखकर खूनख्वार लहजे में कहता, तुम्हें इन मामलात के बारे में पता नहीं, अभी तुम बहुत छोटी हो, जब तुम्हें पता चलेगा तब तुम मुझसे शिकायत नहीं लगाओगी। अभी भी उसकी भाभी फूट फूट कर रो रही थी और उसके भाई के सामने फरियादें करते कह रही थी कि खुदा के लिए मुझे मत मारो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे लग रहा है इस दर्द से मैं मर जाऊंगी। तुम मर जाओ यही अच्छा है, तुम जैसी औरत को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अरे तुम जैसी औरतें तो सिर्फ और सिर्फ अपने मर्दों को गुस्सा दिलाना जानती हैं। तुम्हें मैंने समझाया नहीं था कि तुमने जिरगे की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखना। फिर तुम अपनी मुलाजमा के साथ वहां पर क्या कर रही थी? मुझे अम्मी जान ने भेजा था, उन्होंने मुझे कहा था कि आपको एक पैगाम पहुंचा दूं, उसकी भाभी ने रोते हुए कहा। तो उसका भाई उनके चेहरे पर दोबारा से थप्पड़ मारते कहने लगा, झूठी औरत, मुझसे झूठ मत बोलो, मैं जानता हूं तुम्हारी फितरत को और मैं तुम्हारी एक एक आदत से वाकिफ हूं। जहां तक मेरी मां का सवाल है तो वो तुम्हें क्यों ये कहने लगेगी, जबकि घर में बहुत से मुलाजिम भी मौजूद हैं। वो बात किया करो जिसमें कोई लॉजिक मौजूद हो। मुझे पता है तुम वहां पर अपने आशिक का दीदार करने आई थी और उसमें तुम कामयाब भी हो गई। इससे पहले कि वो उस पर मजीद हाथ उठाता, दरवाजे पर दस्तक हुई। सिकंदर ने जल्दी से अपने चेहरे के तासुरात दुरुस्त किए, बेल्ट साइड पर रखा और अपनी बीवी पर थूकते हुए दरवाजा खोलने चला गया। सामने खड़ी जरताशा को देखकर उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई और वो प्यार भरे लहजे में कहने लगा, अरे मेरी गुड़िया, तुम इस वक्त यहां पर क्या कर रही हो? कहीं कोई मसला तो नहीं? अरे मेरी गुड़िया को डर तो नहीं लग रहा? उसने एक ही सांस में बहुत सारे सवालात पूछ डाले और उसके लहजे में प्यार और मोहब्बत भी मौजूद थी। सोनिया, जो कि बेहाल फर्श पर पड़ी हुई थी, शौहर के इस लहजे पर बेसाख्ता नजरें उठाकर इसकी तरफ देखने लगी, जो अपनी बहन से तो हद से ज्यादा प्यार से बात करता था, लेकिन उसके मामले में ना जाने इसे क्या हो जाता। भाई, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? हाँ मेरी जान, मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त ही वक्त है। चलो हम लाइब्रेरी में जाकर बात करते हैं। वो उसे लेकर घर में बनी लाइब्रेरी में दाखिल हो गया। वो बहुत ज्यादा हिचकिचा रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपनी बात शुरू करे। दूसरी तरफ वो अपनी भाभी की हालत देखकर भी बहुत खौफजदा हो गई थी। उसे डर था कहीं ऐसा ना हो भाई उस पर भी हाथ उठा दे। तुम खौफ से काम क्यों रही हो? अगर ये सब कुछ तुम सोनिया के साथ होने वाले जुल्म की वजह से कर रही हो तो ये बात अपने इस छोटे से दिमाग में डाल दो कि वो औरत, उसके साथ मुझे ऐसा ही सलूक करना चाहिए। वो एक बदबख्त और बेगैरत लड़की है जिसने मेरी जिंदगी में शामिल होकर सिर्फ और सिर्फ मेरा जीना हराम किया है, और अब जब तक मैं उसे सारी तकलीफें नहीं पहुंचा देता जिसकी वो हकदार है, तब तक मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा। भाई, आपको फिर भी उन पर इतना तशद्दुद नहीं करना चाहिए। वो आपकी बीवी हैं और आपको अपनी बीवी की इज्जत, इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, सिकंदर ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। तुम जो बात मुझसे करने आई हो अपनी बात करो, मुझे मत समझाओ। तुम्हें पता है मुझे नसीहतें करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। माफ कर दें भाई, दरअसल मुझे आपको ये कहना था
कि मैं आला तालीम हासिल करना चाहती हूँ और उसके लिए मैं शहर जाना चाहती हूँ। बहन की बात सुनकर चंद लम्हों के लिए वो खामोश हो गया। और अगर मैं तुम्हें इस बात की इजाजत ना दूं? उसने कुछ सोचते हुए सवाल किया तो वो तेजी से बोल पड़ी। भाई, मैं आपके पास एक उम्मीद लेकर आई हूं। खुदा के लिए मेरी उम्मीद ना तोड़िएगा। मैं बचपन से पढ़ने की बहुत शौकीन हूं और मैं चाहती हूं कि आप लोगों की तरह आला तालीम हासिल करूं। देखो मेरी गुड़िया, तुम चाहे 16 जमातें पढ़ जाओ या सिर्फ मैट्रिक पास करो, तुम्हारी शादी तुम्हारे ताया के घर में ही होगी। भाई, मैं ये बात जानती हूं, मुझे इस पर कोई एतराज भी नहीं। मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूं। बस मुझे कॉलेज भेज दें और फिर उसके बाद 4 साल यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करूंगी। मुझे बहुत शौक है और मेरा ये ख्वाब है। मेरा ख्वाब मुझसे मत छीनिए। और गुड़िया, मैं कौन होता हूं तुमसे तुम्हारे ख्वाब छीनने वाला? मैं तो तुम्हारे लबों पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूं और उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। अगर मेरी प्यारी बहन पढ़ना चाहती है तो मैं इसे पढ़ाऊंगा। भाई, अम्मी कह रही थी कि बाबा। अरे अम्मी और बाबा को तुम छोड़ दो, अब ये मामला मेरे हाथ में है। अब मैं ही इसको देखूंगा। चलो, अब तुम परेशान मत होना। कल ही तुम्हारा जाकर कॉलेज में एडमिशन करवा दूंगा, लेकिन इस दौरान तुम्हें घर पर ही रहना होगा, चाहे कॉलेज कितना भी दूर क्यों ना हो। शाम को तुम्हें ड्राइवर लेकर घर वापस आ जाया करेगा और फिर जब बाद में तुम यूनिवर्सिटी में दाखिला लोगी तो तुम्हें तुम्हारे ताया जान के घर छोड़ दूंगा, क्योंकि आजकल हॉस्टलों के हालात बिल्कुल ठीक नहीं। वहां पर खड़े खड़े उसने लाया अमल तैयार कर लिया। वो पुरजोश अंदाज में अपने भाई का शुक्रिया अदा करते वहां से चली गई, लेकिन जब अपने कमरे के बाहर से गुजरी, दरवाजा थोड़ा सा खुला था। सामने ही उसकी भाभी बेहाल जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखों के सामने अरमगान का चेहरा घूमने लगा, जो उसकी भाभी का भाई था, एक बहुत बड़ा सरदार भी था। कुछ दिन पहले ही वो हवेली के अंदर आया था और उसने बहुत वावेला मचाया था। दरअसल वो जान गया था कि उसकी बहन पर जुल्म हो रहा है और वो इन कोशिशों में भी लगा हुआ था कि अपनी बहन को जल्द अज जल्द तलाक दिलवा दे। अब खुदा ही जानता था कि उनकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। जहां तक जरताशा का सवाल था, उसका दाखिला कॉलेज में हो गया। रोज शाम को वो घर वापस आ जाती। एक दिन जब वो घर वापस आ रही थी तो अचानक ही एक गाड़ी उनकी गाड़ी के सामने आकर रुक गई। वो काले रंग की प्राडो थी। उसने ड्राइवर से झुंझलाते पूछा, ये कौन है और यहां पर क्या कर रहा है? इसको कहो जल्दी से गाड़ी हटाएं, मैंने घर जाकर पढ़ना है। कल मेरा एक बहुत जरूरी टेस्ट है। शहर काफी दूर था, आने जाने में बहुत वक्त जाया हो जाता था, जिसकी वजह से उसे पढ़ने में और नींद पूरी करने में मुश्किल पेश आती थी। मगर चूंकि उसके शौक का सवाल था, इसलिए वो खामोश थी। इससे पहले कि ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ाता, अरमगान अपनी गाड़ी से बाहर निकला। वो दोनों उसे पहचान चुके थे। जरताशा का दिल खौफ से कांप रहा था। उसने ड्राइवर को गाड़ी से बाहर निकलने का इशारा किया। ड्राइवर के इनकार करने पर एक जोरदार मुक्का बूढ़े ड्राइवर की नाक पर मारा। ये आप क्या कर रहे हैं? आप पागल तो नहीं हो गए? जरताशा बेचैनी से कहने लगी। जब मैंने इसे कहा है कि यहां से बाहर जाए, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है, तो क्या इसे मेरी एक बार कही हुई बात समझ में नहीं आती? आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? और ये कौन सा तरीका है किसी को रास्ते में रोककर परेशान करने का? तुमने भी तो मेरी बहन को अपने घर के अंदर कैद किया हुआ है। तुम लोग भी तो उस पर जुल्म सितम कर रहे हो। ये कौन सा तरीका है किसी की बहन को परेशान करने का? वो उसी के लहजे में बोला तो वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई। यूं लग रहा था जैसे उसके पास अल्फाज ही खत्म हो गए हों। ये देखकर अरमगान के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वो तकलीफदेह अंदाज में कहने लगा, तो यकीनन तुम लोग मेरी बहन को तकलीफें पहुंचा रहे हो। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा भाई इस कदर घटिया निकलेगा तो खुदा की कसम कभी भी अपने बाप को अपनी बहन का रिश्ता तुम्हारे घर करने की इजाजत नहीं देता। अगर मैं चाहता
तो मैं तुमसे भी बदला ले सकता था, मगर मैं तुम्हारे भाई को वार्निंग दे रहा हूं। उसे जाकर ये बता दो कि वो मेरी बहन को आजाद कर दे, वरना उसके साथ जो कुछ मैं करूंगा उसके बाद वो किसी से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहेगा। अपनी बात मुकम्मल करके वो वहां से जा चुका था। उसके जाने के बाद ड्राइवर दोबारा से गाड़ी स्टार्ट करके घर की तरफ रवाना हो गया। अभी वो अपने बाबा के कमरे के अंदर दाखिल हो रही थी कि अंदर से आने वाली आवाजों को सुनकर उसे लगा कि उसके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई हो। उसके बाबा उसकी मां को बता रहे थे कि वो इनकी सगी औलाद नहीं है, बल्कि वो तो इनके किसी दोस्त की बेटी थी, जिसके इंतकाल के बाद वो उसे अपने घर ले आए थे। और उसकी मां, जिसे वो अपना सबसे सगा समझती थी, वो नफरत का इजहार करते हुए कह रही थी, मुझे तो इस लड़की से शदीद नफरत है। मेरा बस नहीं चलता कि इस लड़की को ऐसी सजा दूं। तुम्हें मैंने इजाजत दे रखी है, तुम उसके साथ जैसा चाहे सलूक कर सकती हो, तुम्हें कोई भी रोकने वाला नहीं है। मैं भी अब तंग आ गया हूं इस जिम्मेदारी से। सिकंदर को भी अब बहुत जल्द मुझे बता देना चाहिए कि वो इसकी सगी बहन नहीं है, इसीलिए जो अल्तफात में वो इस पर कर रहा है वो भी खत्म कर दे। दरअसल वो दोनों ही उसके शहर में जाकर तालीम हासिल करने के खिलाफ थे। थोड़े ही दिनों के बाद पूरे खानदान को यह पता चल गया था कि वो इस हवेली की बेटी नहीं है। उसके बाद क्या था, सब लोगों ने ही नजरें फेर ली। उसके वो भाई जो उससे मोहब्बत करते थे, अब वो उसे अजीबो गरीब अंदाज में देखने लगे। उसका सबसे छोटा भाई जिस तरीके से उसे देखता था, इसका दिल करता था कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। उसे अपने दिल में शदीद तकलीफ का एहसास होता था। पहले वो खानदान वालों की लाडली थी, लेकिन अब वो सबके लिए एक मजाक बन गई थी। उसकी कज़नें उसे तंग करते हुए कहती थी कि तुम तो चांद थी, तुम्हें जमीन पर किसने गिरा दिया। पहले वो सारी हवेली में अटखेलियां करती घूमती थी, लेकिन अब तो वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। एक रात उसे शदीद भूख का एहसास हो रहा था। दरअसल शाम के वक्त उसने खाना नहीं खाया था। उसके ताया जान का खानदान आया हुआ था और उसकी मां ने सख्ती से मना किया था कि तुम अपने कमरे से बाहर कदम नहीं निकालोगी, वरना तुम्हारे ताया जान को भी तुम्हारी हकीकत के बारे में बता दूंगी और तुम्हारा मुस्तकबिल संवरने से पहले ही तबाह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो कभी भी तुम्हें अपने खानदान की बहू नहीं बनाएंगे और ना ही तुम कभी शहर जाकर तालीम हासिल कर पाओगी। यही वजह थी कि वो रात का खाना नहीं खा पाई। और फिर बाद में जाकर उसे इस बात का भी पता चला कि उसके अब्बा जान ताया जान को इसीलिए नहीं बता रहे क्योंकि ताया जान ने कंपनी के बहुत से शेयर्स सिर्फ और सिर्फ जरताशा की वजह से उसके बाप के हवाले किए हुए थे। दरअसल ये एक ऐसा राज था जो उसके सौतेले बाप के खानदान के अलावा और किसी को भी मालूम नहीं था, और वो ये बात भी जानते थे कि अगर बाहर की दुनिया को इस बारे में पता चला तो एक बहुत बड़ा भौंचाल आ जाएगा। उसके ताया जान भी इस हकीकत से नावाकिफ थे। वो किचन में खड़ी अपने लिए खाना गर्म कर रही थी जब अचानक ही उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। पलट कर देखा तो इसका सबसे छोटा सौतेला भाई शामिर खड़ा था। तुम यहां इस वक्त क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? उसने सरसरी अंदाज में पूछा तो वो गहरी नजरों से इसकी तरफ देखते कहने लगा, हाँ, मुझे एक चीज की इस वक्त बेहद जरूरत है। क्या मुझे वो चीज मिल सकती है? वो उसके वजूद में नजरें गाड़ कर खड़ा था। जरताशा को उससे शदीद घिन महसूस हो रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपने अंदर उठते बबाल पर काबू पाया और पुरसकून अंदाज में कहने लगी, अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म कर देती हूं। हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। थोड़ी देर के बाद मेरे कमरे में आ जाना, तब मैं अपनी भूख खत्म कर दूंगा। ये कहकर वो उसकी तरफ बढ़ा और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अगर पहले वाले हालात होते तो वो शायद इस बात को कोई गलत रंग ना देती, लेकिन आज जिस तरह के उसके भाई के अल्फाज थे और जिस तरह की उसकी नजरें थी, उसे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। क्या कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए?
मुझ से दूर होकर खड़े रहो। वो बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाते मुनासिब अल्फाज में बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शामिर उसे हद से ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। अरे नखरे क्यों दिखा रही हो? हम लोगों ने तुम पर बहुत एहसान किए हैं, बचपन से तुम्हारी परवरिश की है, यहां तक कि तुम्हारा तो हमने यूनिवर्सिटी में भी दाखिला करवाने का फैसला कर लिया। उसके बदले मुझे कुछ तो मिलना चाहिए। देखो, मैं जानता हूं कि तुम मेरी बहन नहीं हो, और तुम भी जानती हो कि मैं तुम्हारा भाई नहीं। हम दोनों में खून का रिश्ता मौजूद नहीं है, मगर काफी दिनों से मुझे तुम्हारे वजूद में दिलचस्पी महसूस हो रही है। तुम आज अपने एहसानों का बदला चुका दो और अपना आप मेरे हवाले कर दो। खुदा की कसम उठाकर कहता हूं कि तुम्हें बहुत मोहब्बत दूंगा। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, जरताशा का हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी ये घटिया मुराद पूरी करूंगी? अभी और इसी वक्त यहां से दफा हो जाओ, वरना तुम्हारा मुंह नोच डालूंगी। जलील औरत, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पर हाथ उठाए, तो खुद को समझती क्या है? हमने तुझ पर एहसान करके तुझे अपने घर में पनाह दी, और तू हमें ही आंखें दिखा रही है। तू देख, मैं आज तेरा क्या हशर करता हूं। वो उसे अपने साथ घसीटता कमरे में लेकर जा रहा था, जबकि वो ऊंची ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी और सब लोगों को मदद के लिए पुकार रही थी। थोड़ी ही देर के बाद हवेली वाले वहां पर जमा हो गए, लेकिन शामिर को तो जैसे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने इंतकाम की आग में जल रहा था। कामरान साहब तेजी से आगे बढ़े और अपने बेटे को पीछे हटाते कहने लगे, कहीं पागल तो नहीं हो गए? ये कैसी घटिया हरकतें कर रहे हो? बाबा, मैं पागल नहीं हो गया, बल्कि पागल तो ये हो गई है। इसने क्या सोचकर मुझ पर हाथ उठाया? आप बस मुझे एक मौका दें, मैं इसका दिमाग ठिकाने लगाता हूं। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अब जो कुछ करेगी तुम्हारी मां करेगी। हमने इसके बहुत नाज नखरे उठा लिए, और ये सब कुछ उस वक्त तक था जब तक इसकी दौलत मेरे पास मौजूद थी। अब चूंकि वो पैसे खत्म हो गए हैं, तो ये हमारे किसी काम की नहीं। उन्होंने अपनी बेगम की तरफ देखा और उसे हिदायत करते हुए कहा, आज के बाद ये तुम्हारी दस्तरस में है। इसके साथ तुम जैसा चाहे वैसा सलूक कर सकती हो, कोई भी तुम्हें रोकने वाला नहीं है। तब जरताशा पर एक और बड़ा राज आश्कार हुआ था। दरअसल उसका बाप उसके हिस्से में जितनी भी दौलत छोड़कर गया था, उस पर उसके सौतेले बाप ने कब्जा कर लिया था, और फिर बाद में उसी दौलत को ही खर्च कर रहे थे। अब चूंकि वो सारे पैसे खत्म हो गए थे और वो कंपनी भी डूब गई थी, जिसकी वजह से वो अपनी औकात दिखाने लगे। फिरोज खान ने चूंकि हवेली वालों को ये बात कह दी थी कि मुझे अपनी बीवी की तालीम से कोई मसला नहीं, बल्कि मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूं कि वो तालीम हासिल करे। आजकल के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी है, लिहाजा कोई भी उसे मना नहीं करेगा। अब चूंकि उसके ससुराल की तरफ से भी ये बात पक्की हो गई थी, इसी वजह से वो उसको कॉलेज नहीं छुड़वा पाए। लेकिन बाकी का जो वक्त होता था वो उस पर हद से ज्यादा जुल्म करते थे। रात को जब वो घर वापस आती थी तो उसके लिए बहुत सारे काम बचे होते। मुलाजमों के हिस्से के काम भी वो खुद करती थी। ठंड में ठंडे पानी से बर्तन धोने की वजह से उसके हाथ खराब होने लगे थे। रातों को जब वो अपने हाथों पर वैसलीन लगाती तो उसे शदीद तकलीफ का एहसास होता। पहले सिर्फ और सिर्फ सोनिया पर जुल्म हो रहा था, लेकिन अब वो भी इस जुल्म का हिस्सा बन चुकी थी। और फिर कुछ ही अरसे के बाद सोनिया उन जुल्मों की ताब ना ला सकी और इस दुनिया से रुखसत हो गई। इन दिनों उसने भी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया था और अपने ताया जान के घर जाने के बारे में सोच रही थी। वो बहुत खुश भी थी कि चलो जालिमों से जान छूट जाएगी, लेकिन वो नहीं जानती थी वहां जाने के बाद एक और बड़ी आजमाइश शुरू होने वाली है, जिससे निकलना उसके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। अपने ताया जान के घर वो आ चुकी थी, लेकिन यहां पर सख्ती हद से ज्यादा थी। फिरोज उस पर बहुत नजर रखता था, उसकी जरा जरा सी बात पर उसे डांटता था, उसे बातें सुनाता था, उसे तंग करता था और उसे जहनी तकलीफ दे रहा था। वो जो सोच रही थी कि वो यहां आकर सुकून से रह पाएगी, वो अब मायूस हो चुकी थी। उसे लगता था उसकी जिंदगी से सुकून खत्म हो गया है। दूसरी तरफ अरमगान का गुस्सा भी उरूज पर था।
اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری حویلی کو مار کر کتوں کے سامنے ڈال دے۔ اس کے بابا جمشید صاحب کامران صاحب کے بزنس پارٹنر تھے، دونوں بہت اچھے دوست بھی تھے۔ دراصل دوستی کی بنیاد پر ہی دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جہاں تک اس کی بہن سونیا کا سوال تھا تو وہ اندون یونیورسٹی کی طالبہ تھی۔ وہ اپنے کلاس فیلو کو پسند کرتی تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اپنے باپ کی وجہ سے مجبور ہو گئی۔ اس رات وہ اپنے بھائی کے پاس بھی گئی تھی اور کافی دیر تک اس کے سامنے روتی رہی تھی۔ ارمغان نے اسے تسلی دی تھی کہ فکر مت کرو، تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں ہونے دوں گا، تمہاری شادی تمہاری مرضی سے کرواؤں گا، اور بابا کو بھی یہ اجازت نہیں دوں گا کہ وہ تمہارے ساتھ ظلم کریں۔ بھائی کی باتیں سن کر وہ کسی حد تک مطمئن تو ہو گئی، لیکن اسے ابھی بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی جو اس کے وجود کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس کا بھائی ایک میٹنگ کے سلسلے میں دوسرے شہر چلا گیا۔ جمشید صاحب کو اس بات کی خبر ہو چکی تھی کہ ان کا بیٹا بہت جلد ان سے بغاوت کرے گا، اس لیے بیٹے کی غیر موجودگی میں ہی انہوں نے اپنی بیٹی کا سادگی سے نکاح کروا دیا اور اسے کامران صاحب کی حویلی بھیج دیا۔ سکندر کی فطرت ایسی تھی کہ وہ بہت شکی مزاج انسان تھا، ذرا ذرا سی بات پر شک کرتا اور ایک چھوٹے سے معاملے کی بھی کھال ادھیڑنے میں کوشش میں لگا رہتا۔ اس کی اپنی بھی بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دوستی تھی اور وہ یہ دوستی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے باوجود بھی اسے ایک پاک دامن لڑکی چاہیے تھی۔ جو سونیا اس کی بیوی بن کر حویلی میں آئی تو پہلی ہی رات اس نے سونیا سے ایسے ایسے سوال کیے کہ وہ بہت پریشان ہو گئی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس پر یقین نہیں رکھتا۔ سکندر نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا، اگر مجھے تمہارے ماضی کے بارے میں کسی بھی بات کا پتہ چلا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ ایک لمحے کے لیے سونیا کے دل میں آیا کہ وہ اسے کہے، تم خود ہر طرح کی لڑکی سے دوستی رکھ چکے ہو، بلکہ ابھی بھی تم بہت سی لڑکیوں سے بات کرتے ہو، میں نے تو ایک بھی شکایت نہیں کی، تو پھر تم یہ کیسے حق سے کہہ رہے ہو؟ مگر یہ ساری باتیں وہ اپنے دل میں ہی دبا گئی تھی، جانتی تھی کہ اگر زبان کھولی تو سزا ملے گی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد سکندر یہ پتہ لگانے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ اپنے کلاس فیلو کو پسند کرتی تھی۔ اس کے بعد کیا تھا، وہ اسے حد سے زیادہ مارتا پیٹتا اور اس پر ظلم کرتا۔ سونیا بہت کم اپنے میکے واپس جاتی تھی۔ ایک دن وہ کچن میں کھڑی کھانا گرم کر رہی تھی جب ارمغان کی نظر اس کے بازو پر پڑی جو کہ جلی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ بازو اوپر کی تو اسے لگا اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس کے بازو پر ایک نہیں بلکہ نہ جانے کتنے نشانات موجود تھے۔ یہ سب تمہارے ساتھ کس نے کیا؟ کہیں یہ سکندر نے تو نہیں کیا؟ مجھے سب صاف الفاظ میں بتاؤ، ورنہ میں ابھی جا کر اس کی حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ بھائی کی باتیں سن کر وہ بہت پریشان ہو گئی اور بہانے کرنے لگی، لیکن ارمغان جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اس نے نوکرانی کو اشارہ کیا اور اسے کہا کہ میری بہن کو کمرے میں لے کر جاؤ اور دیکھو کہ اس کے وجود پر کتنے نشانات ہیں۔ یہ بات اس نے بہت مشکل سے کہی تھی، مگر ضروری تھا کیونکہ اسے اپنے شک کو یقین میں تبدیل کرنا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد نوکرانی باہر آئی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ صاحب جی غضب ہو گیا، بی بی کے جسم پر بیلٹ سے مارنے کی وجہ سے بہت سے نشانات پڑے ہیں، اس کے علاوہ جلنے کے بھی نشانات موجود ہیں، یوں لگتا ہے جیسے ہر کوئی روز انہیں مارتا ہو۔ اور پھر اس دن سونیا کی ہمت بھی جواب دے گئی۔ اس نے بھائی کو روتے ہوئے ساری حقیقت بتا دی اور فریاد کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اب ان لوگوں کے پاس نہیں جانا، وہ بہت ظالم ہے۔ سکندر ایک نفسیاتی انسان ہے، وہ مجھے ذرا ذرا سی بات پر مارتا ہے، تکلیف دیتا ہے، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی، اس کی وجہ سے تو میں نے اپنا بچہ بھی کھو دیا۔ جمشید صاحب اپنی بیٹی کی باتیں غور سے سن رہے تھے، مگر ان کے چہرے پر کسی بھی قسم کے تاثرات نہیں تھے، یوں لگتا تھا جیسے انہیں ان ساری باتوں سے کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو۔ آخر میں وہ کہنے لگے، جو بھی ہے وہ تمہارا شوہر ہے، تم نے اپنی ساری زندگی اسی کے ساتھ گزارنی ہے۔ ہمارے خاندان میں شوہروں کو ان کے ظلم کی وجہ سے نہیں چھوڑا جاتا، اور نہ ہی بیٹیاں طلاق لے کر گھر واپس آتی ہیں۔ اب تم اپنا وقت وہیں پر گزارنا ہے، یہ تم پر ہے کہ کیسے اپنے شوہر کو سنبھالتی ہو۔
बाबा की बात सुनकर वो तड़प उठा और कहने लगा, ये आप क्या कह रहे हैं? एक जरा सी गलती की वजह से वो इसे कैसे इतनी बड़ी सजा दे सकता है? वो मर्द है, जो जी चाहे कर सकता है। जमशेद साहब ने ये कहा और वहां से चले गए। दरअसल उन्होंने अपनी बेटी को सख्ती से मना कर दिया था कि तुम्हें घर आने की जरूरत नहीं है। अगर तुम वापस आना चाहती हो तो तुम्हारा जनाजा ही आ सकता है। तुम जिंदा अब इस हवेली में दाखिल नहीं होगी। यही वजह थी कि अरमान की भी नहीं चल रही थी। वो अपनी बहन को इन सब से आज़ाद करवाना चाहता था, लेकिन बाप की वजह से मजबूर हो गया और फिर आखिर में उसने अपनी बहन को भी खो दिया। उसने सिकंदर पर केस करवा दिया था, मगर उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ था। वो लोग बहुत ताकत और दौलत के मालिक थे। बहुत जल्द वो केस भी खत्म हो गया। जहां तक फिरोज का सवाल था तो वो जरताशा को पसंद करता था, उससे मोहब्बत करता था, लेकिन वो भी सरफिरा इंसान था, गुस्से का तेज था। यही वजह थी कि छोटी छोटी बात पर उसे डांट देता। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास होता था, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती थी। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से वो उसके दिल से भी उतर गया। अरमगान अपने कमरे में बैठा था जब उसकी मां अंदर दाखिल हुई और कहने लगी, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं अब उस लड़की को उठा लेना चाहिए। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी अय्याशियां कर ली हैं और हवेली वालों ने भी बहुत मुस्कुरा लिया। अब मैं चाहता हूं वो भी वैसे ही तकलीफ महसूस करें जैसी तकलीफ हम लोगों ने महसूस की। वो उसको अगवा करने की बात कर रहा था। उसकी बात सुनकर कोमल बेगम परेशानी से कहने लगी, बेटा पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है तुम गलत कर रहे हो। उस लड़की के साथ हमें जुल्म नहीं करना चाहिए। उसका क्या कसूर है? ये सब तो उसके भाई ने किया है। मेरी बहन का क्या कसूर था? मेरा क्या कसूर था? आपका क्या कसूर था जो हमने इतनी तकलीफ उठाई? अब ये तकलीफ वो लोग भी उठाएंगे। मैंने फैसला कर लिया है, कल ही उसे अगवा करके अपनी हवेली लेकर जाऊंगा। उससे निकाह करूंगा और फिर सारी जिंदगी अपना गुलाम बनाकर रखूंगा। अरमगान ने जैसा कहा था वैसा कर दिखाया। अगले दिन जब वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रही थी तो एक काली गाड़ी वहां पर मौजूद थी जिसमें अरमगान बैठा था। उसके निकलते ही उसने अपने गार्ड को इशारा किया, जो तेजी से लड़की के पास गया और उसे उठाकर गाड़ी में ले आया। जरताशा खुद को आज़ाद करवाने की कोशिशों में हलकान हो रही थी, लेकिन बेबस थी। जब उसने अरमगान को अपने साथ बैठे हुए देखा, उसे लगा उसके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई हो। खौफ से वो नफी में सर हिलाने लगी, जबकि उस जालिम इंसान के लबों पर मुस्कुराहट फैली थी। उसने बेहोशगी का रुमाल उसके चेहरे पर रख दिया और थोड़ी ही देर बाद वो होशो हवास से बेगाना हो गई। अरे मेरी बुलबुल, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी थी। मैंने तो तुमसे इंतकाम लेना था और तुम्हारे घर वालों को भी इसी तकलीफ में देखना था जिस तकलीफ में उन लोगों ने मेरी बहन को रखा था। वो उसे लेकर हवेली चला गया। जब वो होश में आई तो अरमगान ने गन पॉइंट पर उससे निकाह कर लिया। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ इंतकाम घूम रहा था। शादी की पहली रात उसने अपनी बेगम के साथ बहुत बुरा किया। जरताशा खुद अपनी ही नजरों में गिर गई थी। ना वो खुद से नजरें मिला पा रही थी और ना ही अरमगान की तरफ नजर उठाकर देख पा रही थी। जब भी वो रात गुजरे लम्हात के बारे में सोचती, उसकी आंखों में आंसू आ जाते। उसने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि उसे इस कदर जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। उसने अरमगान को बताने की कोशिश की थी कि उसके इस जुल्म से हवेली वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ वो इस पर और अपनी जात पर जुल्म कर रहा है। वो उसे ऐसे गुनाह की सजा दे रहा है जिसमें उसका कोई कसूर नहीं। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो वो उसे घसीटते हुए घर के पिछले हिस्से में लेकर गया। वो एक बहुत बड़ा सहन था। जरताशा का पूरा वजूद बुखार में तप रहा था। उससे चलना भी मुश्किल हो रहा था। हर थोड़ी देर के बाद वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिरती, जिस पर अरमगान उसके वजूद को ठोकर मारता और उसे दोबारा से उठाता। वो उससे पूरे सहन की सफाई करवा रहा था। तेज हवा चल रही थी, पत्ते बार बार उड़कर पीछे की तरफ चले जाते। ये देखकर जरताशा की आंखों में आंसू आ जाते। अरमगान के लबों पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट फैली थी।
वो उसे आंखों से इशारा करता था कि नए सिरे से शुरू करो। तकरीबन 5 घंटे गुजर चुके थे। उसके बाद वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। अरमगान चलता हुआ उसके पास गया। देखा तो वो होश व हवास से बेगाना हो चुकी थी। उसे ये लड़की किसी जमाने में बहुत पसंद थी, इतनी कि वो उस पर जान देने के लिए भी तैयार था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो इस लड़की से निकाह करेगा और उसे अपनी बेगम बनाएगा। लेकिन जैसे ही हालात बदले और उसे ये एहसास हुआ कि हवेली वाले तो बहुत जालिम लोग हैं जो उसकी बहन को तकलीफें पहुंचा रहे हैं, तो इस लड़की के लिए भी हमदर्दी उसके दिल से निकल गई और उसकी जिंदगी का एक ही मकसद बन गया था कि वो उसे तकलीफें पहुंचाएगा। मगर ना जाने क्यों अब एक लम्हे के लिए तो उसका दिल तेजी से धड़कता था। एक लम्हे के लिए तो उसे इस चीज का एहसास होता था कि वो गलत कर रहा है, मगर दूसरे ही लम्हे वो खुद पर कंट्रोल कर लेता। जब सोनिया का वजूद उसकी नजरों के सामने आता तो वो नफरत फिर से ताज़ा हो जाती। उसको तकलीफ में रखे अरमगान को 2 हफ्ते गुजर चुके थे और वो उसे ये बता कर थक चुकी थी कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। मैं तो खुद हवेली वालों की सगी औलाद नहीं हूं, ना ही मैं उनके खानदान की बेटी हूं। उन्होंने मेरे साथ भी जुल्म किया है। जो तकलीफें उन्होंने मुझे दी हैं, अब दोबारा से वो तकलीफें तुम मुझे दे रहे हो। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकूं। एक दिन वो हज़ियानी अंदाज में बैठी चिल्ला रही थी, मगर अरमगान ने उसकी एक बात नहीं सुनी। उस दिन भी उस पर जुल्म की इंतहा कर दी। उस दिन के बाद वो मुकम्मल तौर पर खामोश हो गई, मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं बोलती थी। उसने माफिया मांगना भी ख़त्म कर दिया था। अब तो वो शिकायत भी नहीं करती थी, बस एक जगह पर बैठी रहती। अगर कोई काम होता तो फौरन से उठकर कर देती। यूं लग रहा था जैसे उसके एहसासात और जज्बात मुर्दा हो गए हों, क्योंकि एक औरत किसी हद तक जिल्लत बर्दाश्त कर सकती है। जब वो हद क्रॉस हो जाती है तो वो एक पत्थर बन जाती है जिस पर कोई चीज़ असर नहीं करती। शायद वो भी एक पत्थर बन गई थी। अरमगान अब जान पूछकर उसे ट्रिगर करता था और उससे ऐसी बातें करता था कि वो बोल पड़े, मगर वो खामोश रहती। एक दिन अरमगान ने फैसला किया कि वो हवेली में जाएगा और उन लोगों को बताएगा कि वो उनकी लड़की पर वैसा ही जुल्म कर रहा है जैसा वो उसकी बहन पर करते थे। मगर एक चीज़ थी जो उसे हैरान कर रही थी। वो ये थी कि फिरोज के अलावा कोई भी इस लड़की को तलाश नहीं कर रहा था। सिकंदर तो बहुत ही आराम से बैठा था, बल्कि अगर ये कहा जाए कि वो अपनी ज़िंदगी में मगन था और खुश था तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। जब वो हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो सब भाई उसे देखकर उठ खड़े हुए और प्यार से गले मिलते कहने लगे, अरे तुम इतने अरसे बाद हमारे घर आए हो, खैरियत तो है? तुम लोगों को ये बताने आया हूं कि तुम लोगों के साथ भी वही सब कुछ हो रहा है जो तुम लोगों ने मेरी बहन के साथ किया। मैं तुम लोगों की बहन को भी वैसे ही तकलीफें पहुंचा रहा हूं। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, उन लोगों के कहकहे बुलंद हुए। तीनों भाई एक साथ मौजूद थे। वो इसका मजाक बना रहे थे। अरमगान के माथे पर बल पड़ गए। ये पहली बार था जब उसे लगा कि वाकई उसने इस लड़की के साथ ज्यादती की है। सिकंदर आगे बढ़ा और उसकी आंखों में देखकर राजदाराना अंदाज में कहने लगा, देखो वो हमारी बहन नहीं है। अरे वो तो हमारी कुछ नहीं लगती। हमने तो उसे अपने पास रखा हुआ था क्योंकि वो दौलत की मालिक थी। जैसे ही हमें वो दौलत मिल गई हमने उसको भी घर से निकाल दिया। बल्कि अगर ये कहें कि जलील करके निकाला तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। तुम भी उसे जलील कर लो, कौन सा कोई तुम्हें मना कर रहा है। बल्कि मैं खुद तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त देता हूँ। उसके साथ जैसा चाहे सलूक करो, हमें से कोई भी तुमसे सवाल नहीं करेगा। ये कहकर वो फिर से ऊंची ऊंची आवाज़ में हंसने लगा, मगर अरमगान का दिल डूब रहा था। यानी इतने अरसे से वो लड़की जो कुछ भी कह रही थी वो सच था। तो क्या उसने एक बेगुनाह लड़की पर जुल्म किया? ये एहसास उसे बहुत तकलीफ पहुंचा रहा था। एक लम्हे की देरी किए बगैर वो अपने घर पहुंचा। उसने देखा जरताशा भी एक सोफे पर बैठी थी और दीवार को देखे चली जा रही थी। अरमगान की आंखों में आंसू आ गए। वो उसके पास गया और उसके हाथों पर हाथ रखा। उसने फिर भी किसी किस्म के रद्द अमल का इजहार नहीं किया, बल्कि वो यूं अरमगान की तरफ देखने लगी जैसे पूछ रही हो, क्या मुझे अभी दोबारा से अजियत देने का दिल कर रहा है?
مجھے معاف کر دو زرتاشا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس بار بھی اس لڑکی نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے منہ سے کچھ نہیں بول رہی تھی، بس دیکھے جا رہی تھی۔ چند دن تو اسی میں ہی گزر گئے۔ ارمغان کو اب یہ فکر ہونے لگی کہ کہیں وہ پاگل تو نہیں ہو گئی۔ وہ اسے لے کر سائیکالوجسٹ کے پاس گیا۔ اس نے ارمغان کو بتایا کہ اس لڑکی کو بہت بڑا صدمہ لگا ہے، جتنی جلدی ہو سکے اسے اس صدمے سے باہر نکالو اور اسے کہو کہ یہ کچھ بولے، ورنہ یہ مر جائے گی۔ اسے لگا تھا وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گا۔ اس نے اس لڑکی پر اس حد تک ظلم کیا تھا کہ وہ بولنا ہی بھول گئی تھی۔ ارمغان نے اس کے ساتھ اپنا رویہ درست کر لیا۔ وہ اس کا خیال رکھتا، اس سے چھوٹے چھوٹے سوال کرتا، اسے اپنے ساتھ باہر لے کر جاتا، مگر وہ کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ اب تو اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن ارمغان نے سونیا کا نام لیا تو وہ اونچی آواز میں چلائی اور زور زور سے نفی میں سر ہلاتے کہنے لگی، میں نے اس پر ظلم نہیں کیا، میں نے اسے کچھ نہیں کہا، مجھے معاف کر دو، تو مجھے اس کے ظلم کی سزا نہ دو۔ ارمغان نے شکر کیا کہ اس کی زبان کھلی تھی۔ اس نے زور سے زرتاشا کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کی کمر کو تھپکتے ہوئے کہنے لگا، میں جانتا ہوں تم نے کچھ نہیں کیا، تم بے قصور ہو، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں دوبارہ کبھی بھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ بچوں کی طرح اس کے چہرے کو دیکھنے لگی اور سوال کرنے لگی، آپ مجھے وہ اذیت نہیں دیں گے نا، اور نہ ہی مجھے میری نظروں میں گرائیں گے؟ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، بلکہ میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے تم اس کی مجھے جیسی سزا دینا چاہو مجھے قبول ہے۔ مجھے آپ کو سزا نہیں دینی، بس آپ مجھے معاف کر دیں، مجھے آزاد کر دیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو۔ تم سے معافی مانگ رہا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ تمہیں جتنا وقت چاہیے تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، تب تک تم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ کافی دن خاموشی میں ہی گزر گئے۔ ایک دن زرتاشا نے اسے حقیقت کے بارے میں بتایا کہ اس کے بابا کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا، جس کے بعد اس کے سوتیلے باپ نے اسے اڈاپٹ کر لیا۔ 15 سال تک تو اسے خوش رکھا، لیکن اس کے بعد اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ ارمغان نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ اب وہ کبھی بھی اس پر ظلم نہیں کرے گا، اور ارمغان نے بھی اسے یقین دلایا۔ جہاں تک سکندر کا سوال تھا تو وہ بھی پکڑا گیا تھا اور اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے موجود تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔